children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter. Eating habits of animals. Let's learn about feeding habits of animals: herbivores, plant-eater animals; carnivores, flesh-eater animals; omnivores, plant and flesh eaters; different ways of eating, food chain and care for animals. Animals need food to grow like us. Animals cannot survive without food. Food helps animals to grow, move and stay healthy. When a kid is born, it is very small. It feeds on its mother's milk. The milk helps the kid to grow big and strong. Later, it eats small leaves and grass and grows into a goat. Similarly, all other animals eat food to grow. देखिए, एनिमल्स को हमारी तरह फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. बिना फूड के तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और फूड उनको हेल्प करता है हेल्दी रहने में, उनको मूव करने में, उनको ग्रो करने में, राइट. तो जैसे किड बॉर्न होता है, किड इज़ द यंग वन ऑफ ए गोट, तो उसकी मदर जो है उसे अपना मिल्क से उसको फीड कराती है. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो छोटे छोटे स्मॉल लीव्स या ग्रास खाना शुरू कर देता है, एंड देन इट ग्रोज इनटू अ गोट. तो इसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी खाना खाते हैं, एंड देन वो एडल्ट में ग्रो करते हैं. Animals eat either plants or other plant-eating animals. Thus, all animals depend on plants for their food. Animals can be divided into three main groups depending on the type of food they eat: herbivores, plant-eater animals; carnivores, flesh-eater animals; omnivores, plant and flesh eaters. तो देखिए, एनिमल्स जो है या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं. तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो आपके प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. तो एनिमल्स को ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. Number 1 is herbivores. The animals which eat only grass, small plants, vegetables, fruits and leaves of trees are called herbivores or plant eaters. Cow, bull, goat, sheep, rabbit, camel, horse, elephant and giraffe etc. are such animals. देखिए, वो एनिमल जो प्लांट्स या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं herbivores या फिर plant eaters. So all these are the examples of herbivores. Carnivores. Some animals eat only the flesh of other animals. They are called carnivores. Lions, tigers, wolves, fox and crocodiles are carnivores. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल दीज एनिमल्स आर कार्निवोर्स. A lizard and frog do not eat plants. They feed on insects. अब जो lizard and frog जो है ये प्लांट तो खाते नहीं, ये क्या करते हैं, ये दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं. Omnivores. Animals which eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. Cat, dog, bear are some examples of omnivores. There are some birds such as crows and robins that are also omnivores. Human beings also eat both plant and animal products. Okay, अब वो एनिमल जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल, कैट, डॉग, बेयर. आपको कुछ मालूम है, कुछ बर्ड्स है जैसे क्रोज एंड रॉबिन्स की बात करें, ये भी ओमनीवोर्स हैं. एंड ह्यूमन बींग्स तो ऑब्वियसली वो भी ओमनीवोर्स हैं क्योंकि वो प्लांट एंड प्लांट एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं. Apart from these groups, there is another group of animals called scavengers. They eat flesh of dead animals. Thus, they help in keeping the earth clean. Vultures, wild dogs, and hyenas are scavengers. Scavengers are sometimes called nature's sweepers. अच्छा, इन 3 ग्रुप्स के अलावा एक और भी ग्रुप है, उन्हें हम कहते हैं स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स क्या करते हैं कि ये डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और इस तरह से अर्थ को क्लीन रखते हैं, तो इसीलिए स्केवेंजर्स को कहा जाता है नेचर्स स्वीपर. Do you know largest mammal, blue whale, does not have teeth. It eats only small animals like shrimps. Blue whale इतना largest mammal है but इसके teeth नहीं होते और ये छोटे छोटे animals को खाते हैं जैसे कि shrimps. Different ways of eating. Different animals eat different types of food. Animals have different ways of eating. The way of eating depends on the kind of food they eat. They have mouth parts suited to the type of food they eat. अच्छा, अब डिफरेंट एनिमल जो है ऑब्वियसली वो डिफरेंट फूड खाते हैं, तो क्योंकि वो डिफरेंट फूड खाते हैं तो उनका जो माउथ का पार्ट है वो उसके हिसाब से होता है जिस तरह का वो खाना खाते हैं. Swallowing. Some flesh-eating animals like snakes, lizards and frogs swallow their food whole. They do not have biting or chewing teeth. They only use their teeth for holding food and gulping it down. These animals have sticky tongues. They catch the insects with their tongue and swallow them whole.
स्नेक्स एंड लिजर्ड्स या फ्रॉग की बात करें तो ये अपने खाने को ना तो बाइट करते हैं ना च्यू करते हैं, ये अपने खाने को एज इट इज सॉलो कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए अपने टीथ का यूज करते हैं सिर्फ फूड को होल्ड करने के लिए एंड उसको गल्प डाउन करने के लिए। इन एनिमल्स के पास होती है स्टिकी टंग्स, जिससे कि अपने इंसेक्ट को ये कैच करते हैं अपनी टंग से एंड देन उसको फिर एज अ पूरा का पूरा सॉलो कर देते हैं। Biting and chewing. Herbivores like horse, cow, goat, giraffe, and elephant have flat and broad front teeth to bite leaves and grass. Their strong back teeth help them to chew and grind the food well. Elephants and giraffes too bite and chew their food. An elephant uses its long trunk to pull leaves and branches of a tree into its mouth. A giraffe eats the leaves from tall trees using its long neck. देखिए आपके हर्बीवोर्स जो होते हैं यानी कि जो प्लांट्स खाते हैं, इनके फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं जिससे कि वो लीव्स या ट्रीज को या ग्रास को बाइट करते हैं। इनके जो स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं ये फूड को च्यू करने में एंड ग्राइंड करने में उसे हेल्प करते हैं। अब देखिए जैसे एलिफेंट है वो अपनी लंबी सी ट्रंक का यूज करता है लीव्स को पुल करने के लिए एंड या ट्री की जो ब्रांचेस है उसको पुल करने के लिए, देन उसको अपने माउथ में लेके जाता है। जिराफ जो है लीव्स खाता है टॉल ट्रीज से, वो इसके लिए किसका यूज करता है, अपनी लॉन्ग नेक का। Chewing the cud. Cows, buffalo and goats have a strange way of eating. At the time of grazing, they swallow their food without chewing it. Later, they bring back to their mouth and chew it properly. This is called chewing the cud. अच्छा, काउ एंड बफलोस की एक बात आप देखना, बड़ी स्ट्रेंज वे ऑफ ईटिंग होता है। वो जब ग्रेस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने फूड को सॉलो कर लेते हैं बिना उसको च्यू किए। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस खाने को वापस अपने माउथ में लेके आते हैं एंड देन उसको थरली च्यू करते हैं। तो इसे कहते हैं chewing the cud. Gnawing. Squirrels, rats and rabbits have long sharp front teeth by which they bite fruits, nuts and seeds. This is called gnawing. They also crack nuts with their long front teeth. आपने स्क्विरल्स या रैबिट्स या रैट्स को देखा होगा, इनके ये क्या करते हैं, फ्रूट्स को बाइट करते हैं या नट्स या सीड्स को खाते हैं, तो इनके काफ़ी जो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, तो इसको कहते हैं नॉइंग। इसके अलावा ये नट्स को क्रैक करते हैं अपने लॉन्ग फ्रंट टीथ से ही। डू यू नो पेट डॉग्स ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट फूड, हाउएवर वाइल्ड डॉग्स आर कार्निवोर्स, इट ईट्स ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। देखिए जो पेट डॉग्स होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट फूड दोनों ही खाते हैं, हालांकि जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं वो आपके कार्निवोर्स होते हैं, ये दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। Tearing and cutting. Lion, wolf and tigers have sharp front teeth to bite and hold their prey. They also have long pointed teeth on the sides to tear flesh. Their sharp back teeth cut the food into thin pieces. They have strong jaws to crush the food. अब लायन, वुल्फ एंड टाइगर्स ये आपके होते हैं कार्निवोर्स, तो इनके फ्रंट टीथ काफ़ी शार्प होते हैं जिससे कि अपने प्रे को होल्ड करते हैं, बाइट करते हैं। इनके पॉइंटेड टीथ होते हैं इनके साइड्स में जिससे कि वो फ्लैश को टीयर करते हैं। इनके बैक टीथ भी शार्प होते हैं जिससे फूड को वो थिन पीसेस में कट करते हैं। Lapping milk and water. Cats and dogs move their tongue in and out to drink water and milk. This is called lapping up. आपने कैट एंड डॉग को देखा होगा, जब वो पानी पीते हैं या फिर जब वो दूध पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपनी टंग को इन एंड आउट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड लैपिंग अप। Sucking. Insects like mosquito, butterfly and bee have a sharp hollow thin tube attached to their mouth. They suck the food into their mouth with the help of this tube. A butterfly sucks nectar, a mosquito sucks blood. आपके मस्कीटो, बटरफ्लाई या बी है, इनकी काफ़ी हॉलो और थिन ट्यूब होती है जो उनके माउथ से अटैच होती हैं। तो ये क्या करते हैं, इस ट्यूब की हेल्प से अपने फूड को ये सक करते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर सक करता है, मस्कीटो आपको पता है ब्लड सक करता है। फूड चेन. A rabbit eats grass and a tiger eats rabbit. They form a chain. This chain is called food chain. Look at the following chain. A food chain always begins with plants and ends with an animal. देखिए फूड चेन क्या होता है आपका, जैसे कि एक रैबिट है वो ग्रास खा रहा है, राइट, एंड टाइगर उस रैबिट को खा रहा है, तो इस तरह से आपकी एक चेन बनती है, तो इसे फूड चेन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रेन्स, ये आपका ग्रेन्स प्लांट्स है, इसे रैट ने खाया, रैट को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने, राइट। तो आप ध्यान रखना कि जो फूड चेन है ना वो हमेशा आपकी बिगिन होती है प्लांट से और हमेशा वो एंड होगी किसी एनिमल पे। Care for domestic animals. Some domestic animals are useful to us. They do a lot of work. Oxen plow fields, horses and elephants carry heavy loads. They need energy to do such work. That is why we need to feed them well.
अब देखिए, आपके कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं क्योंकि हमारे लिए वो काम करते हैं, हमारे हैवी लोड्स वो कैरी करते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं लाइक ऑक्स हैं जो कि फील्ड को प्लाउ करने में हेल्प करते हैं। तो उनको इस सब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें उन्हें अच्छे से फीड करना चाहिए। Animals such as goats, buffaloes, and cows give us milk. They should be fed on grass and oilseed cakes to produce more milk. All animals need protection and care. Domestic animals serve us well if we take good care of them. Food and water must be given to them in clean vessels. Their shelters must be cleaned regularly. Sick animals must be treated in time. We must always be kind to animals. अच्छा देखिए, जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं तो उनको हमें ग्रास देना चाहिए, ऑयल सीड केक्स देना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। सभी एनिमल्स को प्रोटेक्शन एंड केयर की ज़रूरत होती है, और क्योंकि डोमेस्टिक एनिमल्स हमें हेल्प करते हैं तो इसीलिए हमें उनकी अच्छे से देखभाल रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा क्लीन वेसल्स में ही खाना और पानी देना चाहिए। उनके शेल्टर जहाँ पे वो रहते हैं उसे भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, और अगर कोई सिक एनिमल है तो उसे वेट के पास लेके जाना चाहिए। Do you know camel can stay without food and water for about 15 to 20 days? It uses food stored in its body. कैमल जो है बिना पानी और बिना खाने के 15 से 20 दिन तक रह सकता है। ये क्या करता है, जो फूड इसकी बॉडी में स्टोर होता है उसको यूज करता है। Let's remember, different kinds of animals have different ways of eating. Herbivores eat plants, carnivores eat flesh of other animals, and omnivores eat both plants and flesh of other animals. Animals like squirrels, rabbits, and rats feed on hard grains and nuts. Snakes do not have chewing teeth. They swallow their food whole. Animals like frogs have a long sticky tongue to catch their prey. अच्छा देखिए, डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग होते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर्स प्लांट भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। स्क्विरल्स, रैबिट एंड रैट ये क्या कहते हैं, हार्ड ग्रेन्स एंड नट्स खाते हैं। स्नेक्स के च्युइंग ट्यूथ नहीं होते हैं तो अपने खाने को स्वॉलो करते हैं। फ्रॉग्स की एक लंबी सी स्टिकी टांग होती है जिससे कि अपनी प्रे को वो कैच करता है। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।